Very good morning to everyone. And I think you people today is off. No, is on. Is off? No. On. Okay, fine. But anyway, I will try to talk about on RAS system. Mansu sir requested me to talk on RAS system only. And if it is there anything which is interesting for you people in terms of business angle, we can discuss it also later on. And I am basically a professional from fisheries, but I am now more into business oriented. So if you are professional, wants to do business something in coming days in Jammu and Kashmir, you are most welcome to ask me whatever venture you want to do, from where money can come, from where you can put your money into business, and how you can connect the best models of business units in coming days to make it sustainable. So my topic is on RAS system, and you might be knowing that in India last third year is over, but fourth year is now running. There is a project called PMSY, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which is 24,000 crore. After 75 years of independence of India, no government pump up such big amount till today in fisheries sector. This government which is there now in center, they have pumped out 24,000 crores money for fisheries development, not only in freshwater, marine, export, and also cold water fisheries sector. Those people out of you, if you are interested to apply for this PMSY project, go to NFDB site, download the PMSY different schemes. There are 48 different type of schemes are available, out of which if you feel like which is suitable to me, you can apply for that. As Jammu and Kashmir Union Territory, 90% will be government grant, 10% your money you will be invest. So it's the best time before this project ends in 5th year. Now still you have time of 1.5 years to apply, get it done, get that money and make your professionalism into a venture. Then you can earn more things. So RAS system in these last 3 years in India, more than 900 RAS system installed on pan India. Out of which in Jammu and Kashmir, I think 4 RAS systems now running and 2 or 3 new are coming up. But in the RAS system, most of the system, the basic concept of RAS system farmer doesn't know, for which they install it, they are unable to run it. Same like biofloc. People know it more, they think like it's more easy. When they install and run it, they are not able to make it success. So my objective will be in today's presentation to address more on basics. Why RAS important? Where RAS can be sustainable for trout? Is it more viable compared to fish pond? If it is compared to like a raceway or maybe ponds, it is more viable than fish angle. These points I will try to address. RAS. R stand for recirculation. A stand for aquaculture. S for system. So means RAS means recirculation aquaculture system. The system evolved a process of recirculation of the same water, but with some mechanism. Like we like to drink water, but we can take water from bore well, we can take water puree or maybe aquaguard, but the water need to be purified with a system. So that the system also addressed in RAS. RAS system originate from Israel. Most of the technology of, if you see, intensify models, only the one investor, one inventor peoples are from Israel only. Because they develop the technology based on their needs. They develop the technology based on the climate. They develop the technology based on the outcomes. But in our India, most of the time, we will develop the technology to waste the money.
So we need to understand where we are standing and where we are not standing. Okay. I believe you all people are from institute, or there are some people. Okay. You are from, sir? Yes, sir. I'm from outside. You are from outside. आप क्या करते हो? मैं ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ. फिश का? नहीं फिश का. क्या चीज़ का? और स्टूल बेचते हैं. ओके. तो आप क्यों आज फिश ट्रेनिंग में आए हैं? अल्लाह आई कैन अंडरस्टैंड. एक्चुअली थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड थे वो रैक सिस्टम में. मैंने थोड़ा एक वो देखे थे. कहाँ पर? तो यहाँ श्रीनगर में चल रहा है इसमें. अच्छा. क्या करते हैं वो लोग? नहीं आप बैठो प्लीज. सर क्या सर वो उनका वो ये रैक सिस्टम है तो वो हमने देखा है थोड़ा उससे इंटरेस्टेड हुआ तो थोड़ा वो लोग अभी उस सिस्टम में क्या पाल रहे हैं? ट्राउट जी. एक टैंक के कितना लीटर पानी है? वो तो मैंने उनसे पूछा नहीं लेकिन 40,000 लीटर के पानी है. उसमें कितना मछली छोड़े हैं पूछे? सर उन्होंने पूछा. अच्छा. क्या साइज देखें? तब उनके पास जो साइज था वो तकरीबन 250 ग्राम था जो पाल रहा था. अच्छा 250 ग्राम. कितना साइज में वो बेच रहे हैं? वो यही टेबल साइज 250 ग्राम 300 ग्राम बेचते हैं. क्या प्राइस में बेच रहे हैं? 500 रुपये. 500. और वो रेशियो में करते हैं? नहीं ना आप मान के चलो वही सेम चीज रेशियो में करते हैं तब सर तभी वही रेट है. वही रेट है. खर्चा उनको आप पूछा कितना? वो उनका रेशियो और उनका खर्चा कम है. इनके ज्यादा है तो वो तो लॉस है तब. नहीं लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है ना सर. अच्छा ओके गुड. और बाकी लोग बाहर से इंस्टीट्यूशन के बाहर वाले कौन? आप भी हो? हाँ सर उसने और ये भी सुना था उनसे कि जैसे नेचुरल रेशियो में जो इसमें प्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो तकरीबन 1 साल लगता है. तो लेकिन 9 months और रास वालों ने बोला कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 महीने में राइट. इसका मतलब कि वो डबल हो जाएगा ग्रोथ. तो 2 बार. तो आपको भी पैसा डबल करना है इसलिए आप ट्रेनिंग में आए हैं. पैसा डबल नहीं करना है. पैसा फेंकेंगे तो तमाशा देखेंगे. वही पैसा डालोगे तो अपना पैसा आएगा. ओके गुड गुड. आप sir, I'm actually working as assistant manager in one of the companies which is related to horticulture. Okay. But I'm thinking outside the box. I want to go into agriculture. Okay. In coming 1 or 2 years, I'm going to resign from my job. Okay. So I want to explore the new opportunities. So what kind of aquaculture model you are thinking? I'm thinking like integrated farm. It is not like again solely dependent on this. Okay. So you will be putting your horticulture Yeah. with the fisheries and Fisheries, kind of. there will be fishing track in which people will come. I will release some fish and they will catch it again. Okay. Good. और बाहर से और नहीं है बाकी सब यहाँ के हैं. आप लोग में कौन कौन बीएफएससी वाले हैं और कौन बीएफएससी कंप्लीट करके मास्टर्स और रिसर्च लैब में जुड़े हुए हैं? बीएफएससी वाले कितने हाथ उठाइए? जस्ट बीएफएससी 3rd ईयर 2nd ईयर 4th ईयर. नो वन. सब ऑल आर रिसर्च. आपको एक चीज देखो आप 2 आदमी यहाँ पर हैं जो फिशरीज वाले नाव पैर के भी फिशरीज के इंटरेस्ट लेके आए हैं. कुछ करना है और आप लोग जानकारी लेके बैठे हो. आप लोग अभी तक कुछ कर नहीं रहे. कभी कभी है ना खड़ा होकर आईना के सामने आपको पूछना चाहिए मेरा जीवन में मैं क्या क्या सक्सेस दिया, क्या क्या कर नहीं पाया और क्या क्या करना है. सिर्फ खाना है सोना है तब तो प्रोफेशनल डिग्री का क्या जरूरत है? बीएससी नॉर्मल कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेने से ही हो गया. देयर इज ए टाइम टू थिंक. मुझे कल कोई बोल रहा था हमारे कश्मीर में बीएफएससी पास आउट वाले मोर देन 100 के ऊपर है. क्या करते हैं? घूमते रहते हैं. एक ही इंस्टीट्यूशन है कश्मीर में जो फिशरीज पढ़ा रहे हैं. आप आंध्र में जाओ अन्नामला यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करके बहुत सारे नॉन एक्रीडेटेड आईसीआर वाले इंस्टीट्यूट है जो साल में हजारों बच्चे पैदा करते हैं इंस्टीट्यूशन के और हर कोई ना कोई फार्म के साथ जुड़ के कमा रहे हैं. आप लोग को सोचना चाहिए मेरा डिग्री जो लिया है वो क्या फायदा के लिए लिए हैं? कुछ नहीं मिला था तब पढ़ने के लिए फिशरीज आ गए थे. नहीं तो कुछ ना मिला जीवन में तभी मैं फिशरीज पढ़ के घर में सर्टिफिकेट सीना के ऊपर रख के सो रहे.
यू शुड थिंक। इसलिए आप लोग आज घर जाओ, NFDB के साइट में जाओ, PMSY के जितने सारे प्रोजेक्ट है उसको आप डाउनलोड करो, उसको आप देखो। जो कोल्ड वाटर फिशरीज वाले हैं उसको आप डाउनलोड करो। आपको किसी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दिक्कत है, आई विल सपोर्ट। एक DPR बना के आपके रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट है, उनके DFO सर के पास देना है, जमा करना है। वो DFO सर उसको डायरेक्टर ऑफ फिशरीज में डालेंगे, वहां से फिर NFDP ऑफिस जाते हैं, उसके बाद फिर पैसा सैंक्शन होते हैं। पैसा जिनके 50 लाख होते हैं उनके 3 स्लॉट में आते हैं, जिनके 50 के नीचे हैं वो 2 स्लॉट में पैसा मिलते हैं। एक पैसा से आपको काम दिखाना है, काम के बिल सब सबमिट करने से फिर सेकंड लॉट के पैसा आते हैं। ठीक है। सो आपको जो RS सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लेने से क्या होता है ना, मेरा जो टॉक है मैं आपको उस ढंग से उस लेवल में जाके मैं बोल सकता हूँ। अब मैं आपको अभी इंग्लिश में बोला, मे बी बहुत लोग अब एड्रेस नहीं कर पा रहे हो मेरा बात, मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोला, सो देन ऑल पीपल कैन एड्रेस। RS का जो बेसिक मोटो है, बेसिक मोटो, जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं ना, फोन के बेसिक मोटो क्या है? बात करना, कनेक्ट टू कनेक्ट। RS का भी बेसिक मोटो है कम पानी ज्यादा प्रोडक्शन। RS का मोटो है 1 केजी पानी से कितना केजी मछली प्रोडक्शन कर सकते हैं? आइडिया है आपको? 1 केजी पानी में RS सिस्टम में मिनिमम से मिनिमम 40 से 50 किलो मछली के प्रोडक्शन हो सकते हैं, जो कोई भी तालाब रेसवे मॉडल से 20 गुना ज्यादा है। और सेकेंड जो चीज है, RS मॉडल में हम लोग कोई भी पैरामीटर जो बाहर में, मान के चलिए ठंडा आ गया, पानी जम गया, कुछ नहीं हो रहा है, सब पैरामीटर हम लोग उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में RS में क्या इजी है, मछली बड़ा हो गया तो बड़ा वाला उठा के कोई भी टाइम में हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, इजी टू हार्वेस्ट। इसलिए जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाकल्चर में, वो है फूड, खाना, पानी और है ऑक्सीजन। आप मान के चलो खाना नहीं खाया, कुछ दिन आप रह जाओगे, पानी नहीं मिला, कुछ घंटा रुक जाओगे, और हवा नहीं मिला, मिनट में मर जाओ। नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे फिश और प्रॉन्स और जो झींगा पालते हैं उनको क्या चाहिए? उनकी भी सेम ही है, खाना भी आप नहीं दोगे कुछ दिन रह जाएंगे, ऑक्सीजन भी आप उनको दोगे तो कुछ घंटे रह जाएंगे, मगर पानी नहीं मिला तो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में मरेंगे। तो हमारे साथ उनके बहुत मिल है, मिल एक ही चीज में है, हम लोग ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकते, वो लोग पानी बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट, इस सब चीज आप मैनेज करोगे तभी आपको है ना बेटर पैसा बना पाओ, क्यों है ना? एक है आज के दिन में, मान के चलिए अभी समय आएगा शायद मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो लोग शायद पानी खरीद के पीना पड़े, पैसा तो पीने का पानी मिले। तो हम लोग को जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हॉर्टिकल्चर में अभी आया है 1 ड्रॉप 1 प्लांट। अभी हॉर्टिकल्चर में आदमी बोल रहे हैं हवा में कैसे प्लांट हो, एरोपोनिक्स आ गया, हम लोग कभी सुने भी नहीं, हम लोग अभी हो रहा है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी फिशरीज में भी आ रहे हैं, जिसमें कम पानी में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग ले सके और मेरे जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकली वायबल हो, उससे मैं कितना पैसा कमा सकता। ओके, नेक्स्ट। अभी RS सिस्टम जो है वो एक स्ट्रेटेजी अप्रोच है। स्ट्रेटेजी अप्रोच मतलब क्या है? एक आदमी का है, 10 आदमी इन्वॉल्व करके है, पूरा क्लस्टर बेस है, पूरा साल के प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन है, इंडस्ट्रियल अप्रोच है ना, क्या स्टेट अप्रोच है।
आरएस एक आपके इंडस्ट्रियल अप्रोच है। ऐसे नहीं है जैसे घर में मछली खाने के लिए आरएस लगाने हैं, नहीं, आरएस लगाना है पैसा बनाने के लिए, इंडस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए। आरएस लगाना है आपको एक पूरा क्लस्टर उसका बना के साल भर के सप्लाई चेन को सपोर्ट देने के लिए, तभी हम लोग को आरएस चाहिए। नेक्स्ट में प्रेजेंटेशन अवेलेबल रहेगा, आप मेरी बात सुनते रहो, देन यू विल गेट मोर। नेक्स्ट, इतना ज्यादा फीड इफिशिएंसी बढ़ेंगे। एक है फूड कन्वर्शन रेशियो एफसीआर और फीड इफिशिएंसी, क्या अंतर है? आप लोग ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा नॉलेजेबल आदमी हैं, आप लोग अभी हैं रिसर्च में। फूड कन्वर्शन एफसीआर और फीड इफिशिएंसी दोनों के अंतर क्या है? इफिशिएंसी का अर्थ हुआ कितना आप इनटेक करने के बाद बॉडी में कितना अपटेक करके रखे हैं। अपटेक होते हैं दो ढंग से, एक होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अपटेक होते हैं, और एक जो इन टर्म्स ऑफ बायोमास ग्रोथ करते हैं। फूड कन्वर्शन रेशियो के अंतर क्या है? कितना मैं खाया, कितना मेरा वेट गेन हुआ, मगर कितना मेरा अपटेक हुआ उसका फूड कन्वर्शन रेशियो कभी बोलते नहीं है। आरएस सिस्टम एफसीआर इंप्रूव नहीं करते हैं, आरएस सिस्टम फीड इफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। बहुत लोग देखना जो फीड वाले काम करते हैं बोलते हैं मेरे फीड आरएस सिस्टम में गया, बढ़िया एफसीआर आया, वो एफसीआर नहीं है, वो फीड इफिशिएंसी है। कितना दाना के ऊपर कितना एनर्जी मिला और उस एनर्जी से कितना फटाफट उनको बॉडी मास बायोमास के ग्रोथ मिले। इसलिए आरएस सिस्टम बाकी लोग से अलग है। तालाब में, रेसवे में, पॉन्ड में आप कोई भी फिश पालो, उसमें हम लोग एफसीआर कैलकुलेट करते हैं, और आरएस सिस्टम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं फीड इफिशिएंसी। फीड इफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीड कितना से कितना आप कम खिला के भी ज्यादा ग्रोथ आप ले सको, इसलिए आरएस सिस्टम में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है पानी की क्वालिटी। जितना अच्छा पानी की क्वालिटी होंगे उतने ज्यादा आपके फिश के ग्रोथ कम समय में, कम टाइम में आएंगे। नेक्स्ट आरएस में क्या क्या चीज आपको कंट्रोल करना है फिश में? एक है पीएच। पीएच क्यों कंट्रोल करना चाहिए? जो ऑप्टिमम पीएच है हमारे 7 के ऊपर होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है ऑप्टिमम पीएच जो है 7 है, उस पीएच को हमेशा क्यों मेंटेन करना चाहिए? क्या मेडिसिन डालते हैं? जैसे भी एंटी फंगल या कोई भी, अच्छा, तो वो पर्टिकुलर पीएच पे ही डिसॉल्व होंगे और पर्टिकुलर पीएच पे ही वो एक्टिव रहेंगे। अच्छा, ओके। दूसरी बात तो ये है जो पीएच हमारा है वो मेंटेन करता है हमारा कि बीओडी हमारी वगैरह उसमें उसका इंटरफेयर रहता है। और दूसरा जो फिश है, फिश के लिए जैसे हमारे लिए हम पानी पिएंगे तो वो 7 के आसपास का रहना चाहिए। हमारे पानी 7-8 के आसपास हमारे लिए कितना पानी पीने के लिए 7 पीएच जो न्यूट्रल पीएच जो उसमें हमारे जो पानी पीते हैं उसमें पीएच न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो नहीं रहता है, थोड़ा सा बेसिक रहता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे लिए पीएच एक रेंज है पीएच, तो वैसे ही फिश की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए और ऑप्टिमल फंक्शनलिटी के लिए उसको भी या गिल्स में जो ठीक है। आप तो हॉर्टिकल्चर वाले हो, आप इतने वाले फिश वाले आंसर क्यों इतना देते हो और फिशेस वाले क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? जानते हैं आप लोग पीएच क्यों ऑप्टिमम रखना है? अच्छा, So it will affect all the organs in the fish, especially with regard to gills जहाँ से वो respire करती है. Okay. Erosion as well. ओके। And there are two ओवरऑल जो बोलना चाह रहे हैं एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, फिजियोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए। अच्छा, मगर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हम जो पानी पीते हैं उसके पीएच क्या है, मापे हैं कोई?
हम कोई भी पानी, दरिया का भी पानी पिए, एक्वागार्ड का भी पानी पिए, पीएच मापे हैं आप लोग? क्यों नहीं मापे? आज जाके मापिए, देखिए कि आप पानी पी रहे हैं, एसिड पी रहे हैं, एल्कलाइन पी रहे हैं, न्यूट्रल पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? हमारे भोजन डाइजेशन डिपेंड्स ऑन एसिडिक मीडियम because of we are warm blooded, those are cold blooded, they are food reaction based on more on alkaline medium. इसलिए pH आपके कोल्ड ब्लडेड जितने एनिमल्स हैं इनके फिजियोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर में फास्ट आते हैं। पीएच घटा, गिल्स के पार्बोरेशन रेट बढ़ेंगे, कुछ टाइम के बाद वो लोग मर गए, लाइक दे विल गेट डेथ। सेकेंड, पीएच आपके ऊपर नीचे ज्यादा जितने होंगे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होंगे, सो दे माइट हैव ए प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन। उसके बाद सैलिनिटी, ये हमारे ट्राउट के लिए जरूरत नहीं है, बट दोस फिश वी गो लाइक सी बास, उनके लिए सैलिनिटी के हर पैरामीटर चेंजेस के ऊपर उनके फीड इंटेक डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर अनदर पार्ट, टेम्परेचर जितने डाउन जाते रहेंगे फिश के फीड इंटेक रेट घटते रहेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में, ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल में, ऑप्टिमम पीएच लेवल में उनके फूड के डाइजेशन बेटर होंगे। ठीक, देन लाइट, फिश अंधा है ना देख सकता है, fish is blind, then what is the importance of light? It is related to the triggers to hypothalamus hormones, like in case of maturation and food photosynthesis in water body, all depends on light. Feeding habits as well, like some are side feeders. फिश के आंख रोटेबल है ना फिक्स्ड? फिक्स्ड, रोट नहीं होता इससे, ये एक ही तरफ दिखता है। They can move the eyes or it is fixed, only one side they can see. अब ट्राउट में क्या है, फिक्स्ड है ना, आप चाहे तो देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और इट इज फिक्स्ड ऑन ओनली वन साइड। सोचो, आप लोग सोच के आंसर फिर आपका ढंग से आप लेके आना। लाइट ऑलवेज ट्रिगर्स फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, मींस lots of hormonal and also lots of enzyme proenzyme activity depends on lights. Okay, then water flow, हम लोग बोलते हैं ट्राउट में हमेशा क्लियर पानी के फ्लो होना चाहिए, मगर आप जब आरएस में आओगे तब उसमें तो रेसवे के पानी फ्लो नहीं है, मगर तब भी उसमें वाटर फ्लो विथ बेटर ऑक्सीजनेशन मोर देन 6 ppm, 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन के ऊपर होना चाहिए, तभी जाके वो अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको फील कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। ओके, ऑक्सीजन ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कोल्ड वाटर फिशरीज में कोई भी फिश आप पालो, आरएस के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, एक है आपके टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पीएच, तीनों बेसिक इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड हायर साइड जाने से रिस्क है, मगर बेटर ऑक्सीजन होने से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम होगी। स्टॉकिंग डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉकिंग डेंसिटी डिपेंड करते हैं क्या साइज में मैं फिश मार्केट में बेचूंगा, वही साइज के ऊपर बेस करके आपके डेंसिटी भी डिपेंड होते हैं। मान के चलिए आपके एक 10,000 लीटर के आरएस यूनिट है, 10,000 लीटर में आप स्टॉक किए हैं
25,000 numbers of trout. क्या साइज है? ईच फिश 10 ग्राम, बड़ा साइज आप स्टॉक किए, ईच फिश 10 ग्राम। अब 10 ग्राम वाले स्टॉक करने के बाद आप सोचे हो मुझे मार्केट में बेचना है 200 ग्राम, कितना दिन में? विद ए पीरियड ऑफ 5 to 6 months। उस पीरियड में आपको 20,000 के हिसाब से आप देखोगे मे बी उसमें 50% आपके 200 ग्राम आए, बाकी वाले नहीं आए, तो आपको तभी इनिशियली कैलकुलेट करना नहीं, मुझे 20,000 नहीं छोड़ना है, 10 से 12,000 के अंदर ही रख के स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन करके एक साथ सबको 200 ग्राम उठा के मार्केट में देना है। स्टॉकिंग डेंसिटी जितना कम होंगे, डिजीज के आउटब्रेक कम होंगे, स्टॉकिंग डेंसिटी जितना कम होंगे, कम समय में ज्यादा साइज आप प्रोडक्शन ले सकते हो, अदरवाइज टफ। फीडिंग रेट डिपेंड करते हैं आप कौन सा फिश पाल रहे हो, क्या प्रोटीन उनको चाहिए, और सेकंड है कितना टाइम में फीडिंग कर रहे हो। कोई आदमी बोलता है मैं दिन में 5 बार 6 बार खिलाता हूं, कोई बोलता है मैं दिन में 2 से 3 बार खिलाता हूं, मगर 6 बार खिलाना और 3 बार खिलाना, उसमें कौन सा आप सोचते हो इकोनॉमिकली वायबल है? 3 बार। क्यों है ना, जितना आप फीडिंग करोगे उतना वेस्टेज आपके बढ़ेंगे, जितने वेस्टेज बढ़ेंगे इतने आपके टैंक में वाटर क्वालिटी डिटोरेट होंगे, अमोनिया बढ़ेंगे और प्रॉब्लम आएंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल, फिश में ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली उनके फेसेस है, उनके जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट को आरएस सिस्टम में हम लोग प्रोसेस में उसको फिल्ट्रेशन करवाते हैं, उसको भी हम लोग को कंसीडरेशन में लेना है। हम जो फिल्टर लगा रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्टर करने का क्या सिस्टम। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ आरएस, लो वाटर यूज, मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूं, इफिशिएंट एनर्जी यूज, इजी ग्रेडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, ऑप्टिमल फीडिंग स्ट्रेटेजी, जो हम लोग यहाँ पर एफसीआर में काम नहीं करते, फीडिंग इफिशिएंसी पर काम करते हैं। इफिशिएंट लैंड यूज, इफिशिएंट लैंड यूज के अर्थ हुआ जहां पर आप कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उसमें भी आरएस लगा के आप कुछ लैंड के प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और फुल्ली कंट्रोल एनवायरनमेंट टू द फिश, सब पैरामीटर, आज के दिन में अभी बहुत सारे हाईटेक आरएस भी आए हैं जहां पर सेंसर यूज हो रहे हैं, पीएच 2 पैरामीटर डाउन किया, मोबाइल में अलार्म आते हैं पीएच आपके डाउन हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहे हैं तो आपके मोबाइल में अलार्म आते हैं ऑक्सीजन DO लेवल इज गोइंग डाउन, अमोनिया का भी आए, सो इट इज फुल्ली ऑक्युपाइड। ये है ना, मान के चलिए जैसे आपको रोबोट चलाने जैसे सिस्टम यू कैन रन इन आरएस। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें ग्रोथ परफॉर्मेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। सेवरल फैक्टर्स मतलब टेम्परेचर एक पैरामीटर है, पीएच है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, हार्डनेस है, अमोनिया है, फिश साइज है, सीड डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर लेवल एंड फीड है। वाटर लेवल के मैं बोलना चाहता हूँ, फिश जब छोटा रहते हैं वाटर लेवल कम होना चाहिए, फिश जैसे बड़ा होते हैं वाटर लेवल धीमा धीमा बढ़ना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं 4 फीट पानी लाते हैं, 2 ग्राम साइज के फिश स्टॉकिंग डेंसिटी फिश को छोड़ देते हैं, 3 से 7 दिन के अंदर मोर्टेलिटी चालू हो जाते हैं, क्यों ना फूड को लोकेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए डेंसिटी ऑफ वाटर काफी हेवी होते हैं जिस कारण से लोकेट करना मूवमेंट करना स्टॉप। मगर आप पानी छोटा साइज है, पानी के लेवल 2 फीट है, फिश थोड़ा सा बड़ा हुआ 1 फीट बढ़ाया, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद और 1 फीट बढ़ाया, ऐसे आप करने से फिश के ग्रोथ परफॉर्मेंस बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक कंपैरिजन एक दिया हूं जिसमें आप देखो पॉन्ड कल्चर में 1 मीटर क्यूब में कितना फिश हम लोग कर रहे हैं, बायोफ्लॉक में कितना कर रहे हैं, आरएस में कितना कर रहे हैं, और आरएस सुपर इंटेंसिव मॉडल में कितना पानी में कितना मछली के प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं। 17 किलो पर क्यूबिक मीटर पर आवर में सुपर इंटेंसिव आरएस मॉडल में हम लोग कर सकते हैं। उसमें 6% से भी ज्यादा हम लोग पानी के अंदर वो प्रोडक्शन ले सकते हैं, और इफिशिएंसी आप देखोगे 99.6% है। तालाब में आप सोचोगे नहीं तो आप बायोफ्लॉक सोचोगे नहीं तो रेसवे सोचोगे, उतनी इफिशिएंसी कोई भी वाटर सिस्टम नहीं। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट ओके, आरएस के कंपोनेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करने से बहुत लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बोलते हैं, मगर आई विल टॉक अबाउट मोर ऑन जनरल कंपोनेंट्स। आपको सुपर इंटेंसिव बनाना है तो आप उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट लगा सकते हैं। ओके, पहले तो आपको एक ग्रोइंग टैंक चाहिए। टैंक सीमेंट के हो कोई दिक्कत नहीं है, टैंक पॉन्ड लाइनर के भी हो, जो बायोफ्लॉक के मटेरियल तारपोलिन के वो भी हो सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड फॉर्म में भी हो आप उसमें भी बना सकते हैं। मगर हमेशा जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, दो चीज आपको देखना है कोल्ड वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर हो, डिफ्यूजन रेट कम हो उस पर्टिकुलर मटेरियल से। जितना डिफ्यूजन रेट कम रहेंगे उस टैंक के अंदर पानी उतना गर्म रहेगा। डिफ्यूजन रेट ज्यादा होंगे तो आपके टैंक में पानी हमेशा ठंडा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक पार्टिकुलेट रिमूवल डिवाइस। उसका अर्थ हुआ फिश जो टॉयलेट करते हैं उसके पर्टिकुलर एक साइज है, उसके बाद एक फिल्ट्रेशन यूनिट चाहिए जिसमें हम लोग टॉयलेट वाले पर्टिकुलर साइज को सेपरेट करें। फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक ऑक्सीजन सिस्टम होना चाहिए, ऑक्सीजन इंजेक्शन सिस्टम। उसके बाद होना चाहिए बायोफिल्टर, उसके बाद होना चाहिए वाटर सर्कुलेशन पंप। कोई आदमी वाटर सर्कुलेशन के बाद आप लोग ओजोन नहीं तो आपके यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाते हैं, मगर वो डिपेंड करते हैं क्या फिश पाल रहे हैं, कितना डेंसिटी में पाल रहे हैं। कुछ टाइम में ओजोन और यूवी फिल्ट्रेशन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। सो कंसीडरिंग दैट बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज ना भी करते हैं। कोई आदमी चाहे मुझे रेनबो ट्राउट कल्चर करना है राजस्थान में जहां पर क्लाइमेट हमेशा गर्म है, वो लोग चाहे तो एक चिलर भी बीच में लगा सकते हैं। वाटर सर्कुलेशन पंप के बाद चिलर के बाद ग्रोइंग टैंक। चिलर क्या करेंगे, पानी का पर्टिकुलर टेम्परेचर ठंडा करके ट्राउट के टैंक में डालेंगे। ऑलरेडी राजस्थान में आदमी ट्राउट की कल्चर कर रहे हैं चिलर लगा। नेक्स्ट, डिजाइन आप सोचोगे, यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्शन टारगेट और साथ में कॉस्टिंग शेयर किया हूँ। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके 42 मेट्रिक टन होने से कल्चर टैंक आपके होना चाहिए ऑलमोस्ट 81। टोटल नंबर ऑफ टैंक्स होना चाहिए 8। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक में यहाँ पर मेंशन किया ऑलमोस्ट 6 लाख लीटर। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके 30 लाख की भी है और आपके 50 लाख की भी है। चालू करके आप बहुत सारे फिश आप उसमें कल्चर कर सकते हो। इवन क्रैब एंड ऑयस्टर आल्सो नाउ प्रोडक्शन गोइंग ऑन इन आरएस मॉडल। नेक्स्ट, स्टॉकिंग डेंसिटी में यहाँ पर ऑप्टिमम स्टॉकिंग डेंसिटी जो कैटफिश में है 50 to 60 मीटर पर क्यूब है। जो लोग ट्राउट करना चाहते हैं मैं उनको बोलूंगा 30 to 40 स्पीसीज में आपके अच्छे होंगे, उतने ज्यादा आप स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ा सकते हो। फिल्ट्रेशन यूनिट और पानी में आप देखना आरएस सिस्टम में हमेशा पानी थोड़ा सा घोला रहता है, टार्बिडिटी रहते हैं। टार्बिड वाटर होने से आप उसमें डेंसिटी घटा भी सकते हो। नेक्स्ट प्लीज, फिश के साइज यहाँ पर देखो, एक फिंगर में दिखा के रखा हूं, इतना मिनिमम साइज फिश के होना चाहिए। बहुत लोग उससे भी छोटा फिश छोड़ देते हैं जिस कारण से मोर्टेलिटी इनिशियली हाई होते हैं। फिश के मिनिमम साइज एक फिंगर के आसपास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी आइए आरएस में क्या क्या फिल्ट्रेशन वाले सिस्टम है और कैसे सिस्टम रन होते हैं। फिश टैंक से पानी जा रहा है मैकेनिकल फिल्टर में, मैकेनिकल फिल्टर से पानी आ रहे हैं आपके बायोफिल्टर में, बायोफिल्टर से फिश आ रहे हैं डी गैसेस चैम्बर। डी गैसेस का बेसिकली है बीओडी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करने के लिए। कोई आदमी चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाने कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बायोफिल्टर के बाद डी गैसेस के बाद आ रहे हैं ऑक्सीजन एनरिचमेंट। ऑक्सीजन एनरिचमेंट का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन एनरिचमेंट का अर्थ क्या है? आपके ऑक्सीजन लेवल 6 ppm 6 मिलीग्राम लीटर पर ऊपर रहे, जिसमें फिश हमेशा, जैसे होता है ना ऑक्सीजन क्या होता है, आप एक चैम्बर से एक चैम्बर में ऑक्सीजन पानी मूवमेंट करने से हमेशा एक ऑक्सीजन के लेवल नीचे जाते हैं, ऐड नहीं होते हैं। इस कारण से हम लोग ऑक्सीजन चैम्बर में क्या है
एक्सेसिव ऑक्सीजन उसमें दे रहे हैं, जो जब मेन टैंक में जा रहे हैं ऑप्टिमम रेंज हमेशा मेंटेन करें। इसलिए ऑक्सीजन एनरिचमेंट कौन चीज लगाना है, उसके बाद आपको मेन कल्चर टैंक में पानी को पंप आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ यू नो फिश है उसके साथ आप दाना दे रहे हो, फीड कंटेंट व्हाट, कार्बन एंड नाइट्रोजन। फीड में हमारे क्या है, बेसिकली कार्बन एंड नाइट्रोजन है। जैसे टॉयलेट आपका पंप होके आया कहां पर, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में, उसमें क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और बाकी जो पानी है पंप आउट करके कहां पर आया, पंप टैंक में। पंप टैंक में क्या है, सब पानी जमा होने के बाद एक लेवल में आने के बाद ऑटोमेटिकली वो पानी पंप होके जाएंगे आपके बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में, जिसमें एमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट फिश टैंक। ये बेसिकली है केमिकल प्रोसेस जो बेसिकली आपके फिल्ट्रेशन के अंदर होते हैं। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में आप जब खरीदेंगे, नहीं तो आप काम करेंगे, उसमें दो टाइप के आते हैं। एक होता है बैक वॉश मैकेनिकल फिल्टर, जो हर 1 घंटा में 2 बार उसका वॉश होता है। और ऐसे बहुत सारे भी फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर मार्केट में अवेलेबल है, सस्ता वाले, जो है ना हर दिन में 1 बार वॉश होते हैं। और एक भी मैकेनिकल फिल्टर है जिसमें वाटर है ना, स्प्रिंकलर के जैसे पानी गिरते रहते हैं, ठीक है। तो आप जब कोई भी सामान आप लेंगे, उसके है ना स्पेसिफिक मॉडल जान के आप उसको यूज करें, कि वो मशीन्स के ऊपर पानी के फिल्ट्रेशन डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, ये मोटा मोटी कंपोनेंट्स है, आपको क्या चाहिए, टैंक्स, फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पीएच। ऑक्सीजनेशन के लिए आपके लिए ऑलरेडी मैं ऑक्सीजन मीटर बोला हूं। नाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस के लिए आपको ऑलरेडी बायोलॉजिकल और डीगैसिंग चेंबर्स हैं। पीएच के लिए आपके ऑटोमेटेड सिस्टम में ऑलरेडी बोला हूं, जो आप सेंसर बेस भी कर सकते हो। मैकेनिकल फिल्टर है जहां पर फिश के टॉयलेट कन्वर्ट होंगे। और फिल्टर जो है, बहुत लोग मैकेनिकल फिल्टर के बाद सैंड फिल्टर भी लगाते हैं, अब वो डिपेंड करते हैं, चाहिए तो आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो आप नहीं लगा सकते हो। आपकी इंस्टीट्यूशन में डिवाइस सिस्टम लगा रहे हैं, उसमें एक सैंड फिल्टर के भी मॉडल आएंगे, आप लोग जो चाहें बाद में आप देख सकते हो। इट्स नॉट देयर बट इट विल कम। नेक्स्ट, एकदम लेफ्ट में नीचे वाला जो ब्लू है वो पोर्टेबल टैंक्स है। आपके यहाँ पर भी जो टैंक लगेंगे डिवीजन में, वो भी एक पोर्टेबल ही टैंक है। नेक्स्ट, दिस इज मैकेनिकल ड्रम फिल्टर, ठीक है। देखने में इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर ऊपर में उसे कवर रहते हैं, उसके जो साइड में एक आप देख रहे हो जो एरो, फर्स्ट एरो ऊपर से मारे हैं, नीचे में एक जाली होते हैं। जाली का जो मैश साइज है वो मिनिमम से मिनिमम 80 से 100 होना चाहिए। बहुत लोग 200 माइक्रोन के डालते हैं, जिससे वो छोटे हैं, मगर इसलिए आपको बैक वॉश वाले सिस्टम होना चाहिए, हर टाइम में उसका वॉश हो, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ड्रम फिल्टर में ऑलरेडी इन्फॉर्म में बोला हूं, उसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट है उसमें नाइट्रोजन को हम लोग को आउट करना है सिस्टम से। Ammonia should be converted into nitrate, nitrate and nitrogen. वो प्रोसेस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज मोर अबाउट बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। अभी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन आप जितने सारे आरएस सिस्टम में देखोगे, नहीं तो इवन जो अभी लगाए भी हैं, वो देखना, वो एक सीमेंट के टैंक बनाए हैं, उसमें के मीडिया, के में बहुत सारे मीडिया आते हैं, बेसिकली ब्लैक कलर और व्हाइट कलर के प्लास्टिक के मटेरियल है, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे होल रहते हैं। उसको बेसिकली बैक्टीरिया के घर बोला जाते हैं, बैक्टीरिया उसमें ग्रो होते हैं। वो भी डिपेंड करते हैं, उसमें सॉफ्ट से सॉफ्ट है, वो काफी महंगा है, और एक हार्ड से हार्ड है, वो भी बहुत सस्ता है। मगर हम लोग को यूज करना चाहिए, जितने सॉफ्ट होंगे उतने ज्यादा कोरोसिवनेस उसमें कम है, और उसमें केमिकल पॉइजनिंग वाली चीज है। जैसे अभी बहुत सारे थर्ड ग्रेड भी बनाते हैं के मीडिया, ब्लैक वाला सस्ता, उसको कभी-कभी केमिकल उसमें लीचिंग होते हैं। जो लोग सिंपल बायोलॉजिकल मॉडल बनाना चाहते हैं, बेसिक है आपके बायोलॉजिकल फिल्टर में क्या होना चाहिए, एक
सैंड के लेयर होना चाहिए, एक स्टोन नहीं तो चारकोल के लेयर होना चाहिए, उसके बाद एक पेबल्स के लेयर होना चाहिए, उसके बाद एक फोम सॉफ्ट एक मीडियम होना चाहिए जिसमें पानी गिर के जाए। आपके डिविजन में जो अभी बायोलॉजिकल फिल्टर आ रहे हैं मीडियम वाले, उसमें बेसिकली चारकोल बेस्ड और K1 मीडिया बेस्ड वो मॉडल है। उसमें जैसे उसका पानी की डेंसिटी कम है इसलिए मॉडल भी छोटे हैं। आप लोग जो कमर्शियली करोगे उसके आपके टोटल कितने लाख लीटर पानी है उसके 10% हिसाब के अनुसार बायोलॉजिकल फिल्टर के डिजाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर। बायोलॉजिकल आरएस सिस्टम में दिखा गया है टेम्परेचर कभी कभी कम होने के कारण एक वर्म आते हैं रेड कलर के वर्म, टीवीफेक्स नहीं है, टीवीफेक्स देखने में भी रेड कलर के होते हैं। एक वर्म आते हैं जो बेसिकली बायोलॉजिकल फिल्टर में ग्रो होते रहते हैं, वो वर्म बेसिकली हार्मफुल है। कोई भी ऑर्गेनिक लोड जितना मात्रा में बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली वर्म ग्रो होते हैं। इसलिए टेम्परेचर आपके हमेशा 20 के नीचे ना हो, ट्राई करना बायोलॉजिकल फिल्टर में वो हम हमेशा मेंटेन करें, नहीं तो हम लोग को अलग से थर्मोस्टेट जो पानी गर्म था उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट नीचे का एक चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच इफेक्ट। आप लोग कुछ ऑलरेडी एड्रेस किए थे। पीएच डाउन होने से एसिडिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाते हैं जिसके कारण से आपके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हैम्पर होते हैं। इसलिए फिश ग्रोथ नीचे में आप देखो pH 4 means death, pH 5 to 6 slow growth, 7 to 8 good growth, pH 9 to 10 slow growth, pH higher even 11 is also at death point. Okay, next बायोफिल्टर में क्या क्या होते हैं मैं ऑलरेडी कुछ बोला हूं। यहाँ पर आप देखो MBBR मीडिया जिसको K1 मीडिया बोलते हैं, साथ में उसमें स्क्रीनिंग होते हैं। उसके बाद आप देखो एकदम लेफ्ट में नीचे में आप उसमें चारकोल है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, स्पॉन्ज वाले यूनिट है, उसके बाद फिल्टर होके निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज मोर ऑन ऑक्सीजन कोर जिसमें हम लोग 200 से 300% प्योर ऑक्सीजन जनरेट करके आरएस सिस्टम में पंप कर सकते हैं। मान के चलो कोई कारण से कोई आदमी 5 लाख लीटर के 5 टैंक लगाए हैं, एक लीटर के ग्रो आउट टैंक, उनके रूट ब्लोअर ना लगा के रिंग ब्लोअर लगाए हैं 2.5 HP के 2। ठीक है, 2.5 HP के रिंग ब्लोअर 5 लाख लीटर में ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं 4 to 5 ppm, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, आप उसको अभी चाह रहे हो उसको 8 ppm रहे, 6 ppm रहे, 9 ppm रहे, तो उसके लिए आपको अलग से ऑक्सीजन कोन लगाना है। नेक्स्ट यूवी ट्रीटमेंट सिस्टम। यूवी ट्रीटमेंट बेसिकली एक लाइट है जो बेसिकली पानी के अंदर जितने सारे माइक्रोबायोलॉजिकल स्पोर्स हैं वो बेनिफिशियल हो नॉन बेनिफिशियल हो सबको मार दे। इसलिए यूवी लगाना है ना ओजोन लगाना है, वो आपको सोच के लगाना चाहिए। ओजोन नॉट मोर हार्मफुल देन यूवी, यूवी इज मोर हार्मफुल। नेक्स्ट हम लोग को जो फीड खिलाते हैं बेसिकली ट्राउट कल्चर में हम लोग सब कमर्शियलाइज फीड है और प्रोटीन परसेंटेज मोर देन 36 to 38% मिनिमम। हायर द प्रोटीन बेटर द ग्रोथ, बेटर द एफिशिएंसी, मगर हायर द प्रोटीन हायर द एमोनिया आल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक फूड कन्वर्शन रेशियो के चार्ट बनाया हूँ, आप लोग बाद में उसको पढ़ने से आप देख सकते हो कहाँ कैसे आप फूड कन्वर्शन रेशियो जो है उसको फीड इफिशिएंसी में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ फीड हायर प्रोटीन के फीड लाके खिलाने से आपका फिश हायर ग्रोथ नहीं होंगी, पानी के सब ऑप्टिमम क्वालिटी भी ऑप्टिमम होना चाहिए। दैट वाज मैं आई हैव उसमें बोला। नेक्स्ट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप लोग बहुत लोग सोचते हो 2 महीना के अंदर मेरा फिश आधा किलो होना चाहिए, मगर आधा किलो तभी हो पाएंगे जब ये चार्ट उनके फीड इफिशिएंसी चलेंगे।
आप देखो पहले मंथ में कितना इफिशिएंटली ले रहे हैं। आपको ऊपर में देखो रेड ऑरेंज वाले क्या है, एनर्जी यूज्ड फॉर बॉडी मेंटेनेंस, और ब्लू में क्या है, एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रोथ। कोई भी टाइम में आप देखोगे बेबी फिश टैंक में डालने के ना 2 महीने के अंदर 10 गुना उसका बॉडी के वेट के 10 गुना उसका ग्रोथ आते हैं, मगर सेम ग्रोथ उसके ग्रोथ फेज में नहीं आते। छोटा में जब था ना 1 महीने का अंदर जारी छोटा था इतना, अभी हो गया इतना, उसका ग्रोथ क्या होता है 10 गुना ज्यादा होता है, मगर सेम ग्रोथ उसके ग्रोथ फेज में नहीं आता है। यही चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फार्म प्रोजेक्ट है जहां पर आप देख सकते हो कैसे आदमी लगा रहे हैं, कैसे टैंक के डिजाइन है, कैसे ऑक्सीजन के सिस्टम्स हैं कहा, और कैसे आपके वेस्ट वाटर और बायोलॉजिकल टैंक के फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं। नेक्स्ट, आपके एकदम ऊपर में लेफ्ट में आपके जो है वो आपके मैकेनिकल ड्रम फिल्टर की यूनिट है। उसके बाद जो फोटो है वो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वाले हैं। उसमें आप देखो थोड़ा चॉकलेट कलर के कुछ है सब्सटेंस देखने को, बेसिकली बायोमीडिया ही है। उसके बाद आपके जो है वो स्लश पंप है, जो स्लश जो जमा हो रहा है फिल्टर नहीं हो रहा है उसको बाहर फेंकने के लिए है। फिर आपके नीचे जो फोटो है वो आपके मैकेनिकल ड्रम फिल्टर है। उसके बाद आपके जो एकदम लास्ट में जो नीचे में राइट साइड में फोटो है वो ऑक्सीजन कोन है, ऑक्सीजन पंप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ फिश के स्टॉकिंग डेंसिटी, उसके बाद उनके ग्रोथ फेज और उनके ग्रोथ साइकिल। स्टॉकिंग डेंसिटी कितना था 25,000, 50,000 लीटर के टैंक में। एवरेज बॉडी वेट इनिशियली 1 ग्राम के भी नीचे था। ठीक है, डीओसी है डेज ऑफ कल्चर, ड्यूरेशन ऑफ कल्चर पीरियड, 60 डेज। 22 ग्राम आया कितना दिन में, आप हिसाब कर लो। ठीक, एक पापता फिश है शायद, आई थिंक आप लोग नहीं जानते, दिस इज कैटफिश। ये इसका भाव 500 से 800 रुपीस पर किलो है। ये डेलिकेसी है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न इंडिया। जो बंगाली है मोस्ट ऑफ द शादी में हम लोग जिनको हिलसा खिलाना नहीं है, लोग ये फिश खिलाते हैं। नेक्स्ट, सिंगी है, इसका भी मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। 50,000 लीटर टैंक में 50,000 फिश है। ठीक है, 1 ग्राम करके छोड़े हैं। 120 डेज की कल्चर है, 160 ग्राम ग्रोथ है इंडिविजुअल। ओके नेक्स्ट, ये भी एक मॉडर्नाइज्ड टैंक है। पहले वाला आप देखे थे सीमेंट वाले, ये वाले आपके देखो टारपोलिन वाले हैं। ये इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट वाले जो आप फोटो देख रहे हो इसमें सेंसर बेस लगा हुआ है, पानी की ऑप्टिमम क्वालिटी ऑटोमेटिक आते रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई के कल्चर हो रहा है, वियतनाम कोई। ओके नेक्स्ट, ये भी एक फिश के मॉडल है। ये है आउटडोर। बहुत लोग आप लोग सोचते हो शायद आरएस शायद इंडोर ही हो सकते हैं। आरएस इंडोर होने की जरूरत नहीं है, आरएस आउटडोर भी हो सकते हैं, मगर ऊपर में आप एक शेड डालो। कोई आदमी चाहे तो ट्राउट के जो नर्सरी है, नर्सरी आप उसको आउटडोर में इस मॉडल में करो, फिर बड़ा करने के लिए आप इंडोर में शिफ्ट कर सकते हो बड़ा टैंक। तो क्या होगा, आपके साल भर के साइकिल मेंटेन होंगे। एक बार माल उठा के बेच दिया, फिर आप सीड किससे लाओगे, आपके नर्सरी से उठा के फिर आप उसमें डाल सकते हो। आप इंटीग्रेटेड मॉडल उसको बना सकते हो। नेक्स्ट, आप इसमें देखो एकदम राइट साइड में नीचे का जो है वो उनके नर्सरी है, अंदर में उसका ग्रोथ कल्चर। नेक्स्ट, 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 सब आरएस वाले हैं। और यहाँ पर आप जो ब्लू कलर के जो देख रहे हो वो बेसिकली सैंड फिल्टर है। तो उनके मैकेनिकल फिल्टर, सैंड फिल्टर, उसके बाद उसके ऑक्सीजन कोन, देन बायोलॉजिकल फिल्टर, देन पानी डायरेक्ट आ रहे हैं। एक टोटल 50 लाख के प्रोजेक्ट है। उसमें सीमेंटेड टैंक के ईच टैंक इज 50,000। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट,
आपको अभी और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो आरएस के ऊपर। अरे सिस्टम अगर कभी ब्रेकडाउन होता है किसी का प्रॉब्लम, हमारा ऑक्सीजन जाता है, कोई भी वाटर और हम आउट ऑफ स्टेशन, तो हमें मिनिमम कितना टाइम मिलेगा उसको एक्टिवेट? ट्राउट में आपको 3 से 4 घंटे। स्टॉकिंग डेंसिटी कम रहा, स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा रहेंगे देन देयर इज ए प्रॉब्लम। और आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. So first of all, thank you so much for such an energetic, loud and elaborative session. We are highly grateful. Sir, maybe I don't have a question, it's a kind of query. Sir, if we talk about the maintenance, like in case of, is it more as compared to normal raceways? And second thing, if we talk about the investment, like is it just a one-time investment or we need to expend more and more with time? Okay, first is maintenance is very important, is because it's a high stocking density model. So it's not a normal raceway where you are not there, it's also system is going. So it's a maintenance is needed and you need skilled people to look after. Okay. Second important part is investment initially is higher. Okay. Because of the machinery cost is almost minimum 15 to 20 lakhs. Okay. But once you put this system, then the yearly maintenance is very less, maybe 1 to 2 lakhs yearly maintenance. But the system efficiency is very strong. It can work out. So I will show you. I think you have still time in half an hour. In PMSY, what all are the projects you can focus? I have a one small presentation. I will show that. Maybe वो जो पेन ड्राइव है ना, सर ये जो इसका जो राष्ट्र जो सेटअप है ना सर, इसके बारे में जब मैं आगे पीछे में गया तो वहाँ जो सारा टेम्परेचर है वो चेंज है, उसमें नहीं है, आपको पेन ड्राइव लाना पड़ेगा। पैरा बहुत कॉस्टली भी है, तो उसका वो आप मिनिमाइज कर सकते हो। मान के चलो आपको खुद का इन्वेस्टमेंट है, PMSY के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं जाना है, खुद लगाना है, आप आपके ढंग से लगा सकते हो। जैसे मैंने एक देखा हूँ अभी रिसेंट हैदराबाद में, वो आदमी CA है, वो अभी मारल फिश पाल रहा है, सब कुछ है ना एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर में बनाया है, ठीक है। उनके टैंक के साइज छोटे हैं मगर इन्वेस्टमेंट इज 1 CR। उनके वो इन्वेस्टमेंट में वो जो एल्युमिनियम स्ट्रक्चर है इट विल गो 50 इयर्स। तो आप क्या सीमेंट में बनाओगे, आप क्या टारपोलिन में बनाओगे? आप मैं टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं सर ये शेड की बात कर रहा हूँ। शेड जो है ना, जैसे आपको यहाँ पर बर्फ गिरता है तो आपको ना उस टाइप के स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे ऊपर में आप टीन के स्ट्रक्चर लगा दो, साइड में आप वुड वाला कोई स्ट्रक्चर लगाओ, तो डिपेंड करते हैं प्लेस टू प्लेस। हमारे वहाँ पर उठने वाली चीज नहीं है तो हम लोग टीन के शेड देने के बाद साइड में ग्रीन नेट लगा देते हैं। वो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसमें खर्चा स्पेशली यहाँ पर है, जैसे शेड की। जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो। मैं तो उनको देख के यहाँ पर आया इस लाइन में, मगर ठीक है। तो सर बहुत एक्सपीरियंस है एंड नाउ सर वेल इक्विप्ड with a company run more than 50 CR. His turnover. So मेरा journey basically once I done my graduation, then I went abroad for my master's studies. Once I back from Europe, then I thought like I should have my own identity rather than I should look for a job to everywhere. Then I joined 2 multinational company. I worked with Cargill Animal Nutrition for 2.5 years as a technical officer. Then I left it. 5 to 6 years I got experience. Then I start my company named Aqua Doctor Solutions. So I registered it basically to my home address where I used to stay. But before that, I am not from West Bengal basically, born and brought up in Tripura.
So I came Tripura to West Bengal. For me it was very difficult to establish to an unknown place, to a metro city where I don't know anyone. And for me it was very difficult to know people, connect people and to make it done. But slowly understanding people and एक होता है ना अच्छा आदमी होने से अच्छा बंदे भी आपके साथ जुड़ते रहते हैं जर्नी में. So that time I start my business basically from my flat. That's why I put here a photo. Business started at bedroom. Okay. Then it's moved to a small office. मैं एक साल में 2019 में 12 जुलाई अपना बिजनेस चालू किया. उसके बाद मैंने एक छोटा ऑफिस लिया जिसको अभी कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में बोलते हैं को वर्किंग स्पेस. एक बिल्डिंग है जिसमें अंदर 10 कंपनी है, छोटा छोटा चैम्बर बनाते हैं. सो आई टुक ए को वर्किंग स्पेस. फ्रॉम देयर नाउ आई हैव ए ऑफिस ऑफ 1200 square feet. And I used to have one product, that water testing kit, when I start my business. Now we have all kind of services. We provide more than 100 services, not only in India, outside the country. I have opened my office recently to Bangladesh also, and this year we will open our office in Nepal. What I do basically, what I sell and what I do is more about on services. What you need, that's my business. Your needs create an opportunity for my business, and address your needs through business is my viability to make my business model success. That's what I do. Which is something like, big bazaar, where you go you find everything. So I also think like when I'll get old, I'll also open a fish big bazaar where everything will find under one roof. Okay, next please. Next. So now we do all kind of things, and let me tell you, I'm very happy. We are working with a project with university to come up into a aqua park in Jammu and Kashmir first time, and that worth of more than 50 CR. So that project is also with me now. I'm working on that. Like the way he was addressing, there will be a bagbani, there will be a pond, there will be people to stay. So in our aqua park, we are putting all the best technology under center of excellence. So you can, the homestay also is something look like a resort, where you can do fish spa, aquarium gallery, you can find everything under one location. So we are working on that. And we are also working on lots of fish value-added product development with Jammu University now. And we are going to supply some small machines where you can cut your fish head, descaling, defilleting. This is a small machine. Just put on a switch, automatically cut and come. Okay, that's also we are working. We are now also working on value-added product. We have launched recently fish momos, ready to eat. Okay, and we have launched fish burger, fish cutlet, fish balls, torpedo shrimp, prawn pops, like that. 14 varieties of ready to cook. And we have launched recently to Calcutta. We are thinking by next year we will be launching everywhere, wherever you want. We are also now into lab setups. Lab setup means disease soil testing labs. We are also now supplying IoT-based solution to any individual to institute. Okay. We are also now working with a model on drone-based camera to see in your farm the worker working or not. Okay, by sitting anywhere in any part of the world, you can see what is happening. So like this, we are working on multiple things, and that's why I told in a simple language, what is customer needs, that is my business model. So I don't like to see anything. Whatever is comes, I do. Okay. Next, please. So now, if you think about where you can think and where you can start under PMSY scheme, there are some. First is hatchery model. In hatchery, there are 30 lakhs allocation is there. I will share with Mansoor sir that whole PDF you can share among you. There are group-wise allocation are there. For the ladies is 90% subsidies. If you are SC, ST,
For UT 90% subsidy. If you are general, you will be getting 40 to 50% subsidy. Okay, so use and utilize it. One is hatchery. Next, what we are doing actually, I am just trying to show, but all are correlated to projects related to PMSY. FRP hatchery also now we are supplying FRP. If somebody wants, like they want to breed trout somewhere out, not in a permanent structure, this FRP model also can be suitable for you. You can put it anywhere. Once the breeding done, you can bring it down. Even anybody, if you are interested, we are now also working in a project in Northeast where it's very difficult to travel sometime for the not better communication of the roads. We are putting a hatchery in a truck. So we are connect farmer. आपके पास ब्रूडर्स हैं, बोला हाँ इतने साइज के ब्रूडर्स हैं, मैं ब्रीड करना चाहता हूँ, तो ट्रक उनके पॉन्ड के पास चल जाते हैं, 3-4 दिन रुक जाते हैं, उनके तालाब से फिश उठाते हैं, उसको ब्रीड करते हैं, 50% एग्स उनको मिल जाते हैं, 50% एग जो ब्रीड कर रहे हैं उनको है, वो चाहे तो दूसरा आदमी को बेच के भी आ जाते हैं. Movable hatchery also can be done. That's also possible. You can think something on trout also like that. Possible. Rather than just wait for the Department of Fisheries to get the seeds. Okay. Next. Then there is another one concept of seed bank. Seed bank means एक बैंक में जाने से पैसा मिलता रहता है नॉन स्टॉप. आपका भी ऐसे पास एक बैंक हो जहाँ पर सीड सब वैरायटी के मिल सकता है. आप सोचोगे तो सीड बैंक में आप खाने वाले भी फिश कर सकते हो, नहीं तो रंगीन मछली के भी सीड बैंक बना सकते हो. All type of ornamental fishes are available with you through this seed bank. Okay, next. Then another is grow out ponds, high density. आप देखो उसमें पानी ज्यादा फिशी दिखाई दे रहा है. This photo from Bangladesh is growing pangasius. Okay, and right side photo from West Bengal. See the pond water quality, very rich in plankton with the irrigation. So I mean to say that तालाब खोदने से, पानी भरने से, मछली छोड़ने से एक्वाकल्चर नहीं होते हैं. मैनेजमेंट के टिप्स उसमें होना चाहिए. जब मैनेजमेंट उसमें आप जोड़ोगे तभी आप उसके प्रॉफिटेबल, इकोनॉमिकल, वायबल वेंचर में आप आ सकते हैं. ऐसे होता है ना. मैं तो अभी शायद 6th time I am traveling to this university. So मैं कभी-कभी समय मिलने से I go and see around. बहुत लोग बोलते हैं मेरा ना एप्पल के लाइन लगा हुआ फार्म है, बहुत सारे हैं मेरे सारे, इतने लैंड के ऊपर है, मगर कितना भाव में एप्पल बेच रहे हैं आप उसको पूछोगे, that cost is not coming for the viable the whole project what he is doing. Now somebody from Kashmir, he is coming up with a project of apple chips. It will not be sale in India, it will be directly export to Dubai. So उसको opportunity मिला, viable technology मिला, सोच मिला, then he is doing it. So आपको भी ऐसे ही है, एक चीज पकड़ के मत ना बैठ के, you should see what alternative we can do. Okay, next please. केज कल्चर. आपके यहाँ पर भी बहुत सारे डैम है, बहुत सारे लेक्स हैं जहाँ पर कुछ नहीं हो रहे हैं, उसमें भी आप साल के कुछ पर्टिकुलर पीरियड में केज कल्चर मॉडल में कुछ ना कुछ फिश आप कर ही सकते हैं. उसको भी आप चाहो तो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स वाले जो लोग घर में बैठे हुए हैं, उनको बोलो भाई आप एक प्रोजेक्ट डालो, उसमें हर कोई इन्वेस्ट करो, आप उसमें करो. मैं जो लेफ्ट वाला फोटो दिखा रहा हूँ ये झारखंड के प्रोजेक्ट है चांडिल में, जिसमें गवर्नमेंट ने टोटल पूरा डैम में मोर देन 2000 केज लगाए हैं. एक केज एक बेनिफिशियरीज के हैं, तो 2000 आदमी को ना एम्प्लॉयमेंट मिला ना उससे. और जो राइट साइड वाले फोटो है वो चिटागोंग बांग्लादेश के हैं. उसमें क्या है, जो ऑयल आता है ना, ऑयल के ड्रम लिया, उसमें जो पानी का जो पाइप है जो सिल्वर वाले, उसमें बना के उसमें नेट हैंग करके उसमें तिलापिया की कल्चर कर रहे हैं. आपको ना इनोवेटिव होना है. पैसा नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, पैसा वो आइडिया छोड़ के आपको सोचना चाहिए हम क्या मेरे नॉलेज के अंदर कर सकते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
पैसा कुछ आदमी के पास होने से भी पैसा से ना पैसा बना नहीं पाते हैं, और कुछ आदमी नॉलेज से कम पैसा से भी पैसा बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ए पेन कल्चर, आई थिंक दिस इज नॉट सुइटेबल बट ओके। पेन कल्चर मतलब होता है 3 साइड आप कवर किया, एक साइड नेचुरल ब्लॉक रहा, कोई लैंड भी हो सकता है, कोई पॉन्ड की भी हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, लेफ्ट फोटो इज फ्रॉम भूटान, जिसमें ट्राउट कल्चर कर रहे हैं रेसवे मॉडल में, और डायरेक्ट वहां से लाइव फिश बेच रहे हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है। और राइट साइड के फोटो है त्रिपुरा से, जहां पर सीमेंट के टैंक करके वो लोग फिश के नर्सरी कर रहे हैं। आप भी चाहोगे तो आप भी सीमेंट वाले टैंक करके ट्राउट के एग्स, नहीं तो जो बच्चे हैं जुवेनाइल्स डिपार्टमेंट से कलेक्ट करके उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके भी आप जो ट्राउट की कल्चर करते हैं रेसवे, उनको भी आप बेच सकते हो। नर्सरी मॉडल भी इस ढंग से आप डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज अनदर वन, it can be a live fish selling counter, it can be a culture tank, it can be a nursery tank. This is like प्लास्टिक आप शेड बना के आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसके अंदर ही आप फिश पाल रहे हो। ओके, नेक्स्ट, दिस इज मोर ऑन इंडोर एरियाज एंड आउट द राइट साइड इज आउटडोर एरियाज मॉडल। नेक्स्ट, दिस इज ऑन बायोफ्लॉक, जिसमें आप श्रिम्प की कल्चर, फिश के कल्चर, मगर कश्मीर में स्पेशली ऑन श्रीनगर इस एरिया में बायोफ्लॉक में ट्राउट कितना वायबल है आई डोंट हैव आइडिया, बट आपको आप में कोई करना चाहे तो यू कैन वर्क आउट दैट मॉडल, कैन बी आल्सो वर्क आउट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेंसिटी कैन बी डन। मगर रिसेंटली गांधरबल में ISAP करके एक इंस्टीट्यूशन ने 5 बायोफ्लॉक की यूनिट लगाए हैं, मेरे कंपनी से में हम लोग इंस्टॉल किए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर दे हैव इंस्टॉल्ड इट, बट वी विल बी डूइंग मोर ऑन रिसर्च देयर टू आइडेंटिफाई वर्क आउट व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट मॉडल कैन बी वर्क आउट। हम लोग अभी बेसिकली उसमें कॉमन कार्प और आपके आमुर कार्प इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। ये है एक्वापॉनिक्स, जिसमें आप लोग ऑलरेडी मेन गेट के सामने एक मॉडल लगा के रखे हैं एक्वापॉनिक्स के। इंटीग्रेटेड पॉन्ड रेसवे सिस्टम, पॉन्ड के अंदर एक रेसवे अलग से बनाया है जिसमें हायर से हायर स्टॉकिंग डेंसिटी है। इसमें 1 केजी पानी में 80 to 100 किलो के फिश के प्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं। हाई डेंसिटी, ओके, खाना टाइम में गिरता है, ऑक्सीजन के लेवल ऑप्टिमम से ज्यादा रहते हैं, और फिश के डेंसिटी 5 गुना ज्यादा है बाकी कोई भी सिस्टम से आप सोचो। नेक्स्ट, this is some are integrated fish farming model. One is pedicam fish, next, then horticulture on fish on pond diets, more are on leafy vegetables, mushroom with ponds, next, poultry with fish. It is not more, you cannot see more on this side, but if you travel around to northeastern states, every state you will find such models. Next, duck with fish, next, piggery with fish, next. Some of the fish which are for coastal belts, not for here. This is more on diversified aquaculture. One is sea bass, milkfish, crabs. Okay, next. These are the some fishes for diversified freshwater aquaculture. Okay, this mola, then Notopteras, next. Chitala, Singi, next. This is more important for Kashmir, what I feel. This is ornamental fish. If you go and buy a fish, even the light bearers, which cost place like Calcutta, place like Bangalore, place like Chennai, is pair of 20 rupees. If you go and do a survey in Srinagar, the cost is 200 rupees. Why? It's because there is no venture, there is no production. There is nobody supports the market linkage. If you people start doing production, even you people start making it and selling it, even you people also can think of marketing the things into a bigger way. How?
In Srinagar itself, there are many government institutes. They think fixed amount every month you can earn 1,000 rupees. That involving just 1 to 2 hours. Like that, you make production, then service, and also execution. You can earn much more what you can earn from a government office. Just spending your whole day 6 hours of your time. In my company, we have started recently with 100 aquariums of state banks. We are offering them every month 4,000 package. फूड नहीं है, खाना देना है, ठीक है, मछली मर गया, मछली डालना है, क्लीनिंग करना है, हाँ ठीक है, क्लीनिंग भी हो जाएंगे. सो 4,000 पर मंथ के पैकेज है. मेरे एक बंदा एवरी वीक में एक बार जाके पानी चेंज करके देख के सब कुछ करके आते हैं, ठीक है. और जो बंदे कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है, उनके सैलरी उससे ही आ रहा है. We have now 10 people, उसमें हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. प्रोडक्शन वाले जो कौन है, मैं खुद प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, फार्मर प्रोडक्शन करता है, उसको एग्जीक्यूशन बंदे लोग करते हैं. और जो सामान है, एक्वेरियम लगाना है, प्लांट लगाना है, स्टोन लगाना है, वो भी मेरे साथ कंपनी जुड़े हुए हैं, उनको बोल देते हैं, जैसे लगा के आ जाते हैं. तो आपको भी इस ढंग से मॉडल बना के रेडी करना है. एक आदमी जीवन में सब कोई काम कर नहीं सकते हैं. आपको टीम वर्क बनाना है. टीम जितने बड़ा होंगे, टीम में जितने मोटिवेटेड आदमी होंगे, टीम में जितना वाइब्रेंट आदमी होंगे, तभी आपके बिजनेस बड़ा होंगे. आप सोचोगे रिलायंस एक ही आदमी चलाते हैं, टाटा एक ही आदमी चलाते हैं. हम लोग सोचते हैं क्या, मुझे सब कुछ करना है, मुझे मछली खरीदना है, मुझे जाना है, इन्वॉल्व सब कुछ में होना है. तब आप लोग दिन के अंत में पागल बोलता है ये बिजनेस ही नहीं करना है, छोड़. आपकी इन्वॉल्वमेंट उतना ही होना चाहिए जितना आप जानते हो, जितने अपना आप कर सकते हो उतना ही आप इन्वॉल्व रहो. कुछ आदमी बोलता है मैं सब कुछ कर लेता हूं, दिन के अंत में जीरो है, कुछ नहीं कर सकते. एक्वेरियम वाले बिजनेस आप लोग सपोर्ट करो. एक्वेरियम्स के लिए 7 लाख से 25 लाख तक पीएमएसवाई के स्कीम में पैसा अवेलेबल है. 7 लाख, 15 लाख, 25 लाख. एक्वेरियम बनाने से, एक्वेरियम की दुकान ओपन करने से, फिश के ब्रीडिंग यूनिट से चालू करके मार्केटिंग तक भी पैसा वो लोग दे रहे हैं. आप उसके ऊपर फोकस. नेक्स्ट, this is another opportunity, but I don't know which species will be suitable for you, but this technology and this business are now booming up in the southern part of the country. This is spirulina culture. स्पाइरुलिना प्रोडक्शन करने के बाद खरीदने वाले भी आके बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके. मैंने अभी एक्सपो में था अहमदाबाद में, उसमें ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस था 2 दिन. उसमें आप लोग शायद जानते होंगे, आज मालूम नहीं, चाइनीज क्या फ्रॉम CIC, ठीक है, जानते हैं. वो लेके आया क्या, फिश के स्केल से जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम लोग लगाते हैं ना, उसका वो लोग अभी बनाया है. फिश वेस्ट से मॉइस्चराइजिंग क्रीम. अभी उसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले उसके साथ अभी एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, कितना सप्लाई है. और एक आदमी क्या है, जो स्पाइरुलिना वाले जो प्रोडक्ट है उसका कैप्सूल लेके आया है. अब हम लोग मार्केट में भी जाने से मिलता है अभी स्पाइरुलिना कैप्सूल. सो ही इज डूइंग दैट विद अ कंपनी स्पाइरुलिना कैप्सूल. ही इज प्रोड्यूसिंग कैप्सूल, आल्सो ही इज मेकिंग एंड ही इज सप्लाइंग टू people like us. Okay. Seaweed culture only in coastal area, not possible in Kashmir, but you should know what the diversification is going on. Next, pearl farming. pearl farming मेरे ख्याल से श्रीनगर में पॉसिबल नहीं है. We need to focus on Jammu because यहाँ पर थोड़ा सा hot water है, उसमें आप रोहू कतला इनके साथ भी बीच में आप pearl farming कर सकते हैं. मगर there is a possibility of doing pearl culture also in indoor like this a room, even in Srinagar. Those people are interested. I can share 2-person details. There is a madam called Trisha from Visa. वो मैडम अभी घर में ही पाल कर रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले उनको वर्ल्ड फूड इनोवेटिव प्राइज भी मिले हैं, ओके, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो घर में ही टैंक लगा के उसके अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है.
कोई आदमी चाहे तो लैब भी ओपन कर सकते हैं, लेबोरेटरी फैसिलिटी, उसके लिए भी पीएमएसवाई स्कीम में 15 लाख अवेलेबल है फंड्स। पानी, सॉयल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, डिजीज डायग्नोस्टिक्स सेंटर आप खोल सकते हो। ये परमानेंट भी हो सकता है और मोबाइल फिश क्लिनिक वैन भी हो सकता है, उसके लिए भी 30 लाख रुपए एलोकेटेड है पीएमएसवाई में, मोबाइल फिश क्लिनिक वैन। ओके, नेक्स्ट फिश फीड यूनिट आप बड़ा भी लगा सकते हो, बड़ा लगाने से 6 करोड़ के फंड है पीएमएसवाई में। छोटा लगाना है तो उसके लिए भी फंड है 30 लाख, और उसकी भी छोटा आपको लगाना है 5 लाख में भी पोर्टेबल मॉडल अवेलेबल है, सिंगल स्क्रू फ्लोटिंग फ्री। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन की भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट हार्वेस्टिंग और नेक्स्ट अच्छा बैक पोस्ट हार्वेस्टिंग बेसिकली आपके श्रिम्प के है, मगर हमारे कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या फिश अवेलेबल है जिसके हम लोग थ्रो करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद ही आप पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। आई डोंट हैव आइडिया बट यू कैन थिंक एंड टेल मी। नेक्स्ट सूखा मछली, ड्राई फिश के भी काम आप लोग सोलर ड्रायर में भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। जब यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, आदमी को फिश खाने के लिए नहीं मिलते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फिश आपके ड्राई फिश भी हो सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। बाय सिटिंग इन कैलकाटा आई एम सेलिंग ड्राई फिश इन श्रीनगर कार्प्स and it is coming into a 250 gram packets to a cooperative. Next, fish value-added product. I don't know that you have also have a department here who work on fish pickle, fish value-added product and all. You can make a groups of ladies. मैं जितना भी आया हूँ, मैं हमेशा देखा हूँ इस कॉलेज में शायद लेडीज फिशेस पढ़ने वाले ज्यादा आते हैं बॉयज से ज्यादा। तो आप लोग आपके ना स्ट्रक्चर बनाओ, एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें ना फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी आया है, जिसमें गवर्नमेंट 18 लाख देते हैं बनाने में ग्रांट। आप लोग सब मिलके एक ग्रुप बनाओ जिसमें फिश वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के दाल लेक में इवनिंग में आप भी जो घूम घूम के खाते हैं उसमें आपकी भी एक शॉप होना चाहिए वहां। नेक्स्ट fermented fish product. Next, exclusive fish restaurant श्रीनगर में नहीं है, होना चाहिए। There अभी आया है, okay, there is one, okay। ये लाइव फिश सेलिंग काउंटर है, ये भी नेपाल में है, जहाँ पर लाइव फिश सेल होते हैं। नेक्स्ट, फिश मार्ट क्या हुआ? मान के चलिए मैं अभी श्रीनगर में रहता हूँ, मैं एक ही आदमी हूँ, मुझे ट्राउट खाना है, मगर मुझे 1 किलो के ट्राउट नहीं चाहिए, 2 पीस चाहिए। काट के पीस करके 2 पीस को फॉइल में पैक करके रेडी टू सर्व, दैट इज फिश मार्ट। यू पीपल आल्सो थिंक ऑन दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट, टूरिज्म, फिश स्पा, बोटिंग, एंगलिंग, staying with fish together, who knows? I saw somewhere, I forget now. Recently मैंने अभी विजिट किया हूँ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक एक्वेरियम, that is in Science City of Ahmedabad. They have a tunnel aquarium. Okay. And नहीं है यहाँ पर, मगर फंड्स अवेलेबल है PMSY में, you can think. मैंने अभी रिसेंट में देखा हूँ, शायद कोई एक प्लेस में, जैसे एक मॉल है जिसके मॉल के नीचे जब जा रहे हैं ऊपर में फिश घूम रहे हैं, ऊपर में एक्वेरियम है, मॉल के नीचे जा रहे हैं लोग, ऐसे आई थिंक समवेयर इन चाइना और समवेयर। ओके, सो आप इनोवेटिव ढंग से सोच सकते हैं। नेक्स्ट, एक्वेरियम गैलरी, श्रीनगर में आदमी आते हैं दाल लेक घूम के घर चल जाते हैं, मगर फिश के गैलरी देखने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए है। हाँ, one is there. How many fish varieties is there? No idea. No idea. You should go and search. Where is not there, you should invest your knowledge into that. Okay. Then another aspect is IoT based solution. आप लोग आज जानते हैं, जो आदमी दाल लेक में मछली पकड़ने के लिए बोट लेके जाते हैं, मछली मिले उनको नेट में, मगर दाल लेक में मछली के डेंसिटी उसमें है नहीं है, उसका असेसमेंट रिपोर्ट है किसी के पास?
and can tell that okay, how much quantity of fish is there. Snow drought उस टाइम में है, उस टाइम में नहीं है. Carp उस टाइम में मिलेगी, उस टाइम में मिलने. That is not there. IoT can tell you that. IoT also can tell you आपके टैंक में pH चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑक्सीजन हो रहे हैं नहीं हो रहे, सब IoT बोलते हैं. Even IoT आज ऑटो फीडर के साथ जोड़ के दे रहे हैं. 6 बजे खाना मेरे ट्राउट टैंक में ऑटोमेटिक गिरना चाहिए, वो भी IoT आ चुके हैं इंडिया में. नेक्स्ट ये है हमारे जो हिल्सा पकड़ने जाते हैं ना, वो भी अभी IoT लेके जा रहे हैं. वहां से वो पकड़ने के बाद बोलते हैं मुझे 100 किलो हिल्सा मिल गया है, लैंडिंग सेंटर आते हैं तो उसका ऑप्शन भी हो जाता है. ओके नेक्स्ट, आप लोग जो फिशरीज प्रोफेशनल हो, आप सब इस सब साइट में जोड़ना चाहिए. सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील बनाने से काम नहीं चलेगा. You should go search what YouTube fisheries channels are there, where LinkedIn is there, what the job opportunities are there, Google Docs is there, WhatsApp different fisheries professional groups are there, different fisheries professional groups are there in Telegram. Look for that. What next? Some of my page, you can find us in Aquadopter Solution Facebook page. Aquadopter Solution YouTube channel is also there. Aquadopter Solution Instagram page is there. And I like to tell you, in January we are coming up India first e-fish tutor also, where you can learn everything on fisheries by sitting in your bedroom. You can read, understand the tutor. Now science tutor you can find online everywhere, people talk, but for fisheries there is no tutor. So we are launching first time. We are also launching another app that is on Doctors on Call. Any part of the country people can join and get the medication remedies on 8 language. We have now on board 8 experts on 8 language from different locality, and they are also long experience in fisheries. So you can join us, you can pay your fees, you can connect them offline or online service. So we are also coming up. So our website also is, we have changed it from Aquadopter Solution to now into efishtutor.com. So in name of eFish Tutor, the app also will be launching in January. Okay. Next. Drone-based technologies are also now coming up. It is now prevailing in agriculture and horticulture sector. It's coming out. Next. Okay, thank you so much.